ये जम्मू रेलवे स्टेशन के हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं, जहां पर आपसे थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर पर आपको मालूम होगा कि यहाँ की जो टैक्सी यूनियन उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी, अपनी बात भी रखी जा रही थी कि जिस तरह से यहाँ का प्राइवेटाइजेशन पूरे तरीके से किया जा रहा था और यहाँ उन लोगों से कोई भी बातचीत नहीं की गई जो सालों से 50-60 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे। और आज उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर है और कुछ न कुछ यहाँ पर ये देखिए जो डिसीजन लेना सर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਕੱਟਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁਣੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦੇ ਭਈਆ, ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਅਸਲ ਤੂੰ যদি ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 200-500 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਕੇਡੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥਰੂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਟੋ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਈਆ ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਵੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਈਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਓ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈंने लेने। चलो मुझे पता लग जाए कि कितनी कलेक्शन करनी है। देखो वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਪੇ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਾਉ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਨ ਚਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੂਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਆਖੋ ਰਾਤੀ, ਦਿਨੇ ਆਖੋ ਦਿਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਮੇ ਠੰਡਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਓ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕਨੇ ਪਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਨਾ, ਅੱਜ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਡੀ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਡਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ।
टेंडर सारे वाले पता ही नहीं चलिया टेंडर कुछ होई दा अंदरों अंदर ही टेंडर कीता है डिपार्टमेंट चोरी बदलेगा रेलवे डिपार्टमेंट यार वेट कर रहे वाले नु जेड़े नु वेट कर रेलवे डिपार्टमेंट चोर है सुनो यार एक मिनट हां भाई यार गल जो फीस के जरिए करनी पड़ती है एक बात है सुनो एक मिनट टेंडर गलत होता ना उसका एक आरटीए प्रोसेस है आरटीए लगाओ कि ये टेंडर कैसे होगा उसकी पूरी डिटेल आपको आरटीए एक्ट बना हुआ है यार कानून है तुम हाथ में क्यों लेते हो कानून है आरटीए एक्ट लगाओ वकील करो अपना आरटीए एक्ट लगाओ कि कैसे है फंस जाएंगे मैं भी फंसूंगा सारे फंस जाएंगे कि टेंडर कैसे हो गया वो डिटेल देंगे आपको कहां से कैसे टेंडर हुआ सब कुछ बताएंगे आपको आरटीए तो लगाओ यार ये सीधे मुंह से बोलना मैं बोल दूं झूठ बोल दूं आप झूठ बोल दो एक तरीका है ना आरटीए लगाओ वहां पे कि टेंडर कैसे हो गया वो बताएंगे आपको बोल रहे हैं आप तरीके से चलो हमारी लिस्ट बनाने की कोई जरूरत है हमारी ऑलरेडी लिस्टें पड़ी हैं रेलवे के पास हम भी यही बोल रहे हैं एक मिनट सारा कुछ एक मिनट यार एक उसमें आपका मिनट नुकसान क्या है उसमें नुकसान क्या अगर हम इस्तेमाल कोई पूरी डिटेल है सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਟੋ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬੱਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ठीक है सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਟ ਹੈ 270 ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ 490 95 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ठीक है थोड़ी लिस्ट मनना मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ देखो देखो मैं भी फेक गल कर सकता तो फेक गल कर सकते ना हाँ। अगर ऐसे नोट करेंगे सामने पता लग जाएगा ना कि कितनी गड्डी सानू पता लग गया ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਆਟੋ ਹੈ 50 ਆਟੋ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ 70 ਲਿਸਟ ਹੋਗਾ 70 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫालतू ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਈ ਉਹ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ सुनो फिर मेरी गल सुनो ठीक है लिस्ट पे ना लिस्ट ले आओ मैं उन्ने पैसे जिन्ने बनते ना उन्ने दे दियो वो ऑटो की लिस्ट दे दियो ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲੱਗੇ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਆਟੋ हो गया डिसाइड ये है वो रुको यार डीटीएम साहब ने तीन चार चीजें तय हुई थी ना मंडे तक टाइम दिया इनको कि गाड़ियों की लिस्ट जमा करवा देंगे थर्सडे को पैसे जमा करवा देंगे आपने जो सिविल काम करना है वो साइड कर देंगे उन्होंने मुझे कहा है डीटीएम साहब ने कहा है कि टैक्सी वालों को छोड़ के बाकी जगह हैंड ओवर कर लो यही कहा ना हैंड ओवर अब ये जगह है अब इसी डीटीएम साहब ने यही कहा ना कि ये जगह कवर कर लो टैक्सी को छोड़ दो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो ठीक है हम करेंगे अब हमने ये कहा अगर अब ये भी नहीं करने देंगे तो हम उनको आज रिटर्न में दे देंगे कि ये हम यहाँ पे गए थे ये पूरा वाक्य होगा पूरा रिटर्न में दे देंगे हमें क्या क्योंकि हमने तो थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है हमने हल्ला नहीं मचाना कि ये हो गया वो हो गया वो प्रॉपर चैनल अगर नहीं अब नोट कर रहे हैं हमने कहा कि ठीक है आप पैसे नहीं देने हम जबरदस्ती पैसे किसी से नहीं लेंगे आप देंगे तो लेंगे नहीं देंगे तो नहीं लेंगे हम नोट करेंगे उसकी भी लिस्ट बना के हम उनको लेंगे कि ये पैसे है इनसे पैसे लेने हैं हमने ये है 1 महीना नहीं देंगे 2 महीने 3 महीने सर 3 साल का टेंडर है 3 साल रेलवे ने हमसे पैसे लेने 3 साल तक चलना कितनी देर चलेगा जो लीगल है वही तो करना सर जो लीगल बैठे टेबल पे बताइए अगर मैं गलत हूँ कहीं पे बताओ मैं गलत हूँ मैं पीछे हट जाऊँगा बताओ मैं गलत हूँ मैंने तो पैसे जब टेंडर हुआ था मैं किसी टैक्सी वाले को नहीं जानता था किसी ऑटो वाले को नहीं एक साइड पे अपलोड टेंडर होता है मैं ऑनलाइन उसको चेक करता हूँ उसकी डेट देखता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ ये 2 बार टेंडर हुआ है एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ था जो इनकी बिड थी वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए थे इन्होंने 2 करोड़ 44 लाख रखी हुई थी तो हमने 1 करोड़ तक डाली थी तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर री टेंडर हुआ उसके बाद री टेंडर हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शो होता है उनकी IRCTC की जो साइड है उसके ऊपर तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया 2 घंटे बिडिंग प्रोसेस चला है उसके बाद हमने लास्ट में पैसे भरे हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपया 1 साल का भरा है तो पैसे उसकी टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी तय होती है जब टेंडर अपलोड होता है इनको टेंडर प्रोसेस का पता नहीं ना मैं प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो ये होता है इसमें कुछ नहीं अगर आपको लगता है कि कोई गलत बात है तो उसमें आरटीए लगाओ यार आरटीए लगाओ आरटीए के एक एक्ट बना हुआ है आरटीए लगाओ आपको लिस्ट मिल जाएगी अगर गलत हुआ है सारे फंस जाएंगे अगर किसी ने गलत तरीके से टेंडर लिया है तो हाँ बिल्कुल सर बस ठीक है हाँ आ जाएगा उसका जवाब भी आ जाएगा वेट करो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है जो गलत है वो बिल्कुल गलत है टाइम देखो मेरा टाइम फर्स्ट से शुरू हो गया हाँ जी सर सत श्रीकाल मैं भी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन से हूँ भैया बात ऐसे है हम चाहते हैं इस मसले को स्मूथली निपटा जाए यस्टरडे तक टाइम मिला है ठेकेदार से और यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हंगामा लगातार यहाँ पर चल रहा है ये जितने भी लोग हैं रेलवे में जो टैक्सी यूनियन है उनके लोग हैं और बाकी जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है
वो लोग भी आज यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से यहाँ पर बैरियर लगाया जा रहा था क्योंकि उनको जो जिस चीज़ का उन्होंने ठेका लिया है वो भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं। पहली तारीख से बताया जा रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था, लेकिन आज जिस तरह से उनकी तरफ से बैरियर लगाया जा रहा था, जो यहाँ के टैक्सी यूनियन के लोग थे उन्होंने एतराज़ किया और कहीं ना कहीं कुछ बातचीत बढ़ गई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस या देख सकते हैं पुलिस फोर्स कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच गई थी। और फिलहाल बातचीत से ही यहाँ पर निपटारा जो है वो किया जा रहा है। सभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। अब ये बात जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट निकला था, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भरा और ठेका वो मेरे पास आ गया, मैं पूरे लीगली चला हूँ। अगर अब मैं काम नहीं करूँगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगा, मुझे तो सरकार को पैसा देना है कॉन्ट्रैक्ट का, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इसी चीज़ को लेकर वो अपनी बात कह रहा है और दूसरी तरफ जितने भी टैक्सी यूनियन के लोग हैं वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल कुछ हल निकाला गया है और इस हल में अब देखना होगा कि आने वाले समय, क्योंकि आपस में ही कुछ बातचीत की गई है, उसी बातचीत का नतीजा ये निकलेगा कि कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अब देखना किस हिसाब से वो चला पाते हैं। ये साफ तौर पर इनकी तरफ से बात जो है वो रखी गई है। यहाँ देखिए ये सभी लोग जो हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। मसला था ठेकेदार का और हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं, ये सबकी अभी बात हुई है। एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब बैठ के यहाँ पे इन सब की बात हो गई है और इन सब ने यह वीरवार तक का टाइम मांगा है। सब आपस में बैठ के मसले का हल निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग बेसिकली जितने ड्राइवर हैं ना, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे ओहदेदार हैं, बैठ गए। यहाँ पे आने जाने वाली सवारी खड़ी होकर एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब हमारे अपने लोग हैं। यहाँ एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारा मसला सॉल्व हो चुका है। ये सॉल्व हुआ है कि यहाँ पे बैरियर नहीं लगेगा। वीरवार तक दोनों पार्टियां बैठ के मसले का हल निकल जाएगा। ठीक है सर। और साफ तौर पर यही कहा गया है कि थर्सडे तक जो है वो हल इनका निकलेगा और उसके बाद हल अगर निकल जाता है ठीक है, अगर नहीं निकलता है वहाँ यही कह रहे हैं कि आपस में अब लड़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो जिसको मिलना था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। आपसी बातचीत के साथ ही बाकी चीज़ें आगे की चलेगी। यहाँ के टैक्सी यूनियन के लोग हैं, उन्हें भी काम करना है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे भी काम करना है और बातचीत की जा रही है। आपसी सुलह जो है वो चीज़ें सामने देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर वो काम कॉन्ट्रैक्टर भी कर पाएगा और टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो भी कर पाएंगे। फिलहाल यही यहाँ का निष्कर्ष निकल के आया है कि आपसी जो मतभेद था इनके बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के बाद से बातचीत चली है और अब दोनों पक्ष जो हैं और कुछ चीज़ें देखेंगे कि किस हिसाब से दोनों का काम जो है यहाँ पर चल पाएगा जम्मू रेलवे स्टेशन में। तो ये उसी के लेकर सारा जद्दोजहद जो है वो चल रही थी। कोई अपडेट और आती है इससे रिलेटेड तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। सुखविंदर सिंह के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।